Good morning, student. Today again I am going to start the chapter area of parallelogram. I will discuss the rest question and example related to area of parallelogram. First question. Find the area of a rhombus shaped field if the length of each side be 14 centimeter and the altitude be 1.6 decimeter. Rhombus. In this question we have to find area of rhombus. Rhombus is also known as parallelogram, in which all sides are equal but they treated as parallelogram. We have to find area of rhombus. It means we have to find area of parallelogram. So हमें दो ही बातों पर ध्यान देनी है. फर्स्ट बेस, सेकेंड एल्टीट्यूड. Area of rhombus and area of parallelogram. The formula of area of rhombus and area of parallelogram is equal to base into height, base into altitude. Length is given. Length is given means base is given 14 centimeter. And altitude, it means height is 1.6 decimeter. This is centimeter, this is decimeter. जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि दोनों यूनिट सेम होना चाहिए. Here base of the rhombus is equal to 14 centimeter. Altitude is equal to 1.6 decimeter. 1.6 decimeter को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. So 1.6 multiplied by 10 and we get 16 centimeter. Then area of rhombus. The formula of area of rhombus is equal to base into altitude. Same formula of parallelogram. Base is 14 into altitude is 16. मल्टीप्लाई करने के बाद 224 सेंटीमीटर स्क्वायर. Then area of rhombus is equal to 224 centimeter square. Next question. The base of a parallelogram is twice its height. पैरेललोग्राम का बेस हाइट का ट्वाइस है, यानी 2 टाइम्स है. इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 512 सेंटीमीटर स्क्वायर. पैरेललोग्राम का एरिया 512 सेंटीमीटर स्क्वायर है. देन फाइंड द बेस एंड हाइट. ओके, लेट द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम बी x सेंटीमीटर. सबसे पहले हम पैरेललोग्राम का हाइट x मान लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बेस हाइट का ट्वाइस है, यानी 2 टाइम्स है. तो लेट द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम बी x सेंटीमीटर. देयरफॉर बेस ऑफ द पैरेललोग्राम बी 2x सेंटीमीटर, ट्वाइस. x का 2 टाइम्स यानी 2x. As we know that area of parallelogram is equal to base into height. Area is given 512 centimeter square. Base is equal to x multiply height is equal to 2x. x और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे we get 2x square. So 512 is equal to 2x square. 512 को 2 से डिवाइड करेंगे और x स्क्वायर. 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 रेस्ट
1, 2 5 जा 10 and 2 6 जा 12. X square is equal to 256. 256 is the perfect square of 16. So 16 square cancel. Therefore x is equal to 16 सेंटीमीटर. जैसा कि हमने x को हाइट माना था, इसलिए हाइट हो गया 16 सेंटीमीटर, और बेस को हमने 2x माना था, तो 2 इंटू 16 यानी 32 सेंटीमीटर. हेंस हाइट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड बेस इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 3. Two sides of a parallelogram are 40 centimeter and 50 centimeter. पैरेललोग्राम का दो साइड्स 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर. If the altitude corresponding to the side of length 50 centimeter is 20 centimeter, it means जो पैरेललोग्राम का बेस 50 सेंटीमीटर है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी, अगर ये पैरेललोग्राम है और ये 50 सेंटीमीटर अगर है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ये हुआ और इसका हाइट कितना है 20. ओके, अगर ये साइड 50 सेंटीमीटर है तो ये साइड 40 सेंटीमीटर है. ओके, एंड एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द साइड लेंथ 50 सेंटीमीटर इज 20 सेंटीमीटर. ये जो एल्टीट्यूड है जो इस साइड पर है वो 20 सेंटीमीटर. ओके, फाइंड द एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द अदर पेयर ऑफ द साइड. यानी ये 40 सेंटीमीटर जो साइड है, इस पर ये जो एल्टीट्यूड होगा वो कितने हाइट का होगा, यानी उसका एल्टीट्यूड कितना होगा, यही फाइंड आउट करना है. ओके, सी केयरफुली. लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, दैट इज corresponding altitude is equal to 20 centimeter, that means 20 centimeter. And as you know that area of parallelogram, the formula of area of parallelogram is equal to base into height. Base 50 centimeter into height 20 centimeter. 50 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे. Again, length of other side of parallelogram is equal to 40 centimeter and this side is given 40 centimeter. Let corresponding altitude be x centimeter. यानी ये जो हाइट है उसको हमने क्या मान लिया, x सेंटीमीटर. ओके, then again we will write area of parallelogram. As you know that base into height, base 40 into height जिसको हमने x माना है 40 into x सेंटीमीटर स्क्वायर. इसे मैंने दूसरा इक्वेशन मान लिया. जहाँ तक एरिया का सवाल है तो फिगर वही है, सिर्फ साइड और हाइट चेंज हो रहा है, साइड और हाइट चेंज हो रहा है, लेकिन एरिया कभी भी चेंज नहीं हो सकता है. एरिया रिमेन्स सेम, एरिया विल बी सेम, साइड विल चेंज, height will change but area will not change. Okay, then we have to follow from equation 1 and 2. equation 1 और equation 2 दोनों एरिया ही है. इसका मतलब ये हो गया कि ये और ये दोनों आपस में इक्वल होगा. सी 40 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1000. एक्स फाइंड आउट करना है. 40 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. 0 0 कैंसिल, 4 से डिवाइड करेंगे 100 को 25. देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. हेंस द एल्टीट्यूड corresponding to
द अदर पेयर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। यानी ये जो लेंथ देख रहे हैं इस बेस के लिए ये कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कितना निकला, 25 सेंटीमीटर। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम वर्कशीट 3। द एरिया of a rhombus is 119 centimeter square and its perimeter is 56 centimeter. Find its altitude. Solution is, we know that perimeter of rhombus, the formula of perimeter of rhombus is equal to 4 into साइड, बिकॉज रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं स्क्वायर की तरह, बट स्क्वायर नहीं होते हैं। रोम्बस इज पैरेललोग्राम। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 into साइड। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज गिवन 56 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 into साइड। 56 डिवाइडेड बाई 4 into साइड, तो साइड के साथ 4 मल्टीप्लाई इधर आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड इज इक्वल टू साइड। 56 डिवाइडेड बाई 4 वी गेट 14। देयरफॉर साइड इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। रोम्बस का ये साइड बेस का काम करेगा। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। वी हैव टू फाइंड एल्टीट्यूड ऑफ ए रोम्बस, देन लेट एल्टीट्यूड ऑफ रोम्बस बी h सेंटीमीटर। आप कुछ भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, मैंने h सेंटीमीटर माना है। एंड वी नो दैट एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू base into altitude. Area of rhombus is given 119 centimeter square, so मैंने इसके नीचे लिखा is equal to base 14 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई का साइन, और एल्टीट्यूड को हमने h माना था, सो मैंने h लिखा। 119 डिवाइडेड बाई 14, h इज इक्वल टू 119 डिवाइडेड बाई 14 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेंटीमीटर कैंसिल, 1 सेंटीमीटर बच गया, और 14 से जब 119 को डिवाइड करेंगे 8.5 आएगा। तो देयरफॉर वी कैन से दैट h इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। हेंस वी कैन से दैट एल्टीट्यूड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। Okay, thank you.